1/2 करेक्ट. तो आंसर क्या आएगा? 2 pi I into residue, that is 1/2. So 2 cancel, answer is pi I, option B. Is that clear? Good. And question number 13 तो डायरेक्ट दिख रहा है, बोलो आंसर बोलो. दे आर आस्किंग अबाउट पूल क्या है एंड उसका ऑर्डर क्या रहेगा. व्हाट इज द आंसर? 3 and order 2, correct. 3 and order 2, yes. So option number 2 ना, order 2 at z equal to 3. Yes. What about 14th one? F of z equal to z plus 3 upon sin z. F has a pool. बोलो. sin z equal to 0 क्या आता है? n pi पे n pi का पावर नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है ना. So I'm having order 1 only. So which option? Option number 1, correct? Yes, definitely. ये हो गया. और हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, डू यू सी इजी है? I can definitely write it in that form. Question number 15, can you do that? What will you do? You'll write it in this form: z plus 1 the whole cube upon z minus 1 the whole cube, which is same as phi of z upon z minus 1 the whole cube. So what is residue? Residue at z equal to 1 क्या आएगा? Yes? No, हाँ हाँ, yes, डबल. दैट इज phi डबल डेरिवेट कौन से पॉइंट पे? 1 पे. तो पहले डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी व्हाट? 3 इंटू जेड प्लस 1 ना. फाइव डैश क्या आएगा? फाइव डबल डैश, दैट इज 5 2 बोलता हूँ मैं. ये क्या आएगा? 6 इंटू जेड प्लस 1, करेक्ट. यस, दैट्स इट. 1 पे पुट करना है तो आंसर क्या आएगा? दिख रहा है? व्हाट इज द फाइनल आंसर? वो तो ठीक है, लेकिन z इक्वल टू 1 पे चाहिए ना. तो इट इज गिविंग मी कितना? z इक्वल टू 1 पे चाहिए ना. सो डबल डेरिवेटिव इट इज गिविंग 12 ना. यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. देयर शुड बी 12. वो लोग ने शायद 0 कंसिडर कर दिया सॉल्व करते टाइम. इट हैपेंस एक्चुअली. वो लोग भी दे आर ह्यूमन बीइंग. सो वो उनको लगा इट इज़ डिनोमिनेटर में z होगा, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 करके ही, बिकॉज मोस्टली ऑल द क्वेश्चन आर एट 0 ओनली. So they must have. So you just make a correction here, that option should be here, it should be 12 and here minus 12 ऐसा. Okay, if you want 6 minus 6 तो वो भी डाल दो, 6 minus 6. So what is the answer? Answer is 12. ठीक है. 16th, can you do that? You just have to find first derivative of this thing, correct? Okay, very good. Minus 1/4, nice. What about 17? What can you say? Do you know what is essential singularity? What is pole? What is removable singularity? Maybe I'll quickly review that thing. Huh? Should I do that? हाँ, yes, definitely. See, पहले तो मैं लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन लिखता हूँ फंक्शन का. कोई भी फंक्शन है, what I can do, कोई भी what I can do, I can write it in this form, that is summation n equal to 0 to infinity e n z minus z naught raised to n प्लस बी एन वाला मैं एक्सपांड करके लिखता हूँ, ठीक है. प्लस बी वन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट प्लस बी टू अपॉन जेड माइनस जेड नॉट द होल स्क्वायर and so on, correct? So there are three types of singularity. The first singularity is telling that if there are no terms,
terms of bi. Correct? That means what? Bi is 0 for all I belongs to natural number. ठीक है? Then this is called, then जो भी है, then z not equal to जो, sorry, z equal to z not is called removable singularity. Z equal to z not is called removable singularity. Is that clear? ठीक है, इतना समझा? Whether first differentiation is okay or not? Okay, and the second guy is saying that if there exists, say, some n, ऐसा बोल सकते, there exists some n such that bn is non-zero. मतलब क्या रहेगा तुम्हारा टर्म? अप टू bn you are having term, ये टर्म रहेगा, and after that you are having zero. Correct? So then n is called pole, or मतलब z equal to z naught is pole of order n. This is the second guy. ठीक है, समझा क्या ये? मतलब if you write it in Lorentz series expansion, there are some term, at least एक n तो है ऐसा, even first term ही है तभी भी चलेगा. Then I'll be saying this is a pool of order n, जो भी order हो. Is that clear? ठीक है. And what is the last thing? What is the last thing remaining? What do you see? If ये टर्म कभी एंड ही ना हो, ये जो एनालिटिक पार्ट है ना, ये कभी भी एंड ना हो, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल सिंगुलरिटी. देयर में भी कंडीशन की एक दो टर्म के लिए जीरो हो, बट दिस विल नेवर एंड. I cannot say that bn is I can just say that there are infinitely term of there are if there are infinite terms having 1 upon z minus z naught. ये बोला तो मतलब सब आ जाते हैं, 1 upon z naught, ये सब आ जाते हैं. ठीक है. If there are infinite terms of this, then that is called essential singularity. Z equal to z naught is called essential singularity. Do you see? मतलब डिफरेंस दिख रहा है तुमको? तीनों ध्यान से देखो. ये बंदे में क्या बोल रहा था? B का कोई भी टर्म ही नहीं होना चाहिए. That means I should only have analytic part. Then that is called z equal to z naught is called removable singularity. The second thing is that if at least कोई एक बंदा तो है, उसके आगे के सब लोग जीरो होने चाहिए. There exists some bn which is non-zero, and also m is zero for all m which is greater than n. मतलब n के आगे के जितने भी नेचुरल नंबर है ना, सब जीरो होने चाहिए. दैट मीन्स अगर b2 मैंने नॉन जीरो बोला तो उसके आगे का सब b3 b4 सब जीरो होने चाहिए. करेक्ट? सो दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ ऑर्डर n. द नेक्स्ट थिंग इज if there is infinite terms, then 1 upon z1 is z0. This is called essential singularity. Is that okay? Yes. Now shall we go to the problem जो भी क्वेश्चन में दिया था. ये वो फंक्शन कौन सा था? e raised to 3 by z. So what do you know about e raised to 3 by z? Let us try. Do you know something about e raised to z? I would like to get to know about e raised to 3 by z. Again I am going to do the Lorentz series of this. So मुझे e raised to z का पता है. e raised to z क्या होता है? 1 plus z square by 2 factorial, so z cube upon 3 factorial and so on. What is e raised to 3 by z? क्या आएगा? It will be 1 plus 3 by z plus 3 square upon 2 factorial into z square plus 3 cube upon ठीक है ना? Yes, 3 cube upon
3 factorial into z cube, correct? What do you see? If you compare with your Lorentz series expansion, what do you see? There are infinite terms of 1 by z, correct? So what is the answer? What is your answer? Z equal to 0 is? Yes, essential. Do you know why? Because there are first of all removable क्यों नहीं है? Because I am having terms of 1 by z, 1 by z square and so on. मतलब this is my b1, b2, b3 and bn. So here I am having these terms, so that means ये removable नहीं है. Second thing is I am having infinite terms. If it was कि मतलब यहीं तक है, सिर्फ यहीं तक है, इसके आगे के सब zero है, then I could say कि this is a pole of order 2, but that is also not the case. So I'm remaining with the last one. Z equal to 0 is essential singularity. Look at the option. कौन सा? Option number 1 ना? 17 option 1. 0 is the essential singularity of F. ठीक है? Hello. Yeah. What about this 18th बोलो? That is easy. You can do that, I think. Z equal to option B. Okay. हाँ, ये क्या आएगा? Z equal to 1 ना, मतलब जस्ट उसमें पुट करना रहेगा ना? Yes, so that is 1. ठीक है. Good. What about 19th one? Again a beautiful problem. E raised to z upon 1 plus z. Done. 0 पे बात कर रहे हैं हाँ. E raised to z upon 1 plus z. I would like to, first of all I have to write the Lorentz series expansion. Let us try. The function is e raised to z upon 1 plus z. क्या करेंगे बोलो? What should we do? I would like to write this of the form, कैसे फॉर्म में लिखना है? Summation e n z raised to n plus summation b n upon z raised to n, ऐसा, where n is going from 0 to infinity, here n is going from 1 to infinity. ये पूरे टर्म को मुझे ऐसा लिखना है. क्या करूँ मैं? First of all, do you see z equal to 0 a singularity here? Do you see z equal to 0 a problem here? Yes. लुक एट वन मोर थिंग. आई थिंक जब मैंने रिमूवल कराया था, रिमूवल का डेफिनेशन दिया था तुम लोग को, देन आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट, सी लुक एट द फंक्शन एफ ऑफ जेड. इसमें कोई भी बी का टर्म नहीं है, तो अगर मैं लिमिट अप्लाई किया, लिमिट जेड इक्वल टू जेड नॉट, देन इट एग्जिस्ट. That means limit of that function exists at z equal to z naught. Still it is a singularity, that is okay, but it exists. So why I'm relating with that thing? So suppose I can write this in this form. ठीक है? Suppose I can do that. ठीक है? So if I apply limit on both the side, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई किया, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई किया, so I don't care about this part because ये तो मुझे पता है एग्जिस्ट होएगा. This limit will always exist. I just have to care about this. If there are at least one term of 1 upon z, then ये क्या आएगा? This does not exist. Do you see? Then this limit does not, then right hand side will not exist, correct? And what if you are told that left hand side exists, then what can you say? Limit at left hand side exists, then what can you say? That means right hand side is also existing.
राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कब होएगा, जब ये एग्जिस्ट होएगा, देयर आर नो टर्म्स ऑफ दिस, देन ओनली दिस राइट हैंड साइड लिमिट विल एग्जिस्ट. डू यू एग्री? Do you agree or not? See, limit at z equal to z naught 1 upon z raised to n. ये कभी एग्जिस्ट होएगा क्या? z equal to 0. This does not exist. Do you agree or not? अगर if I am saying if my left hand side limit, left hand side मतलब I am talking about this limit, huh? This is my left hand side. I'll refer this as left hand side and I'll refer this as right hand side. ठीक है? Now observe it very carefully what I am going to see. If my left hand side, if limit of left hand side, if limit z tending to 0 of LHS exist, then limit z tending to 0 right hand side also exist. Correct? Is that clear? So what do you mean by right hand side exist? Implies what? There are no terms of Bn. Implies what? Z equal to 0 is, जब Bn का कोई टर्म ही नहीं है तो क्या होता है? Z equal to 0 is removable singularity. Very nice. Yes, correct. So shall we do like this only? Let us see limit left hand side का limit exist होता है क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख रहा था कि एग्जिस्ट हो रहा है, सो मैंने मतलब इतना बोला. इट इज़ जस्ट टू टेल यू, बट इन सम केस यू कैन डू दैट ऑल्सो. z इक्वल टू 0, देखो डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं रहा है मेरा, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे इसमें करने में. सो इट इज़ वॉट जस्ट e raised to 0 upon 1, that is 1. So it exists. So what will you say? Z equal to 0 is removable singularity. Do you see, ये सब मतलब जब प्रैक्टिकल की क्वेश्चन करोगे ना तभी ये सब मतलब आता है. अगर डायरेक्ट देखो तो इतना मतलब तुमको सोचने को नहीं मिलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट कब एग्जिस्ट होएगा एंड सो ऑन. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैं जो भी पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ सिंगुलैरिटी, अगर उस पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है then that is definitely a removable singularity. In other two cases there is problem. ठीक है? एंड इवन अगर थोड़ा सा तुमको मैं टू मोटिवेट यू, पोल का भी हो सकता है. पोल में क्या रहता है, इफ आई मल्टीप्लाई z माइनस z नॉट रेज टू n, आई डोंट नो दिस n, ये जस्ट मुझे गेस करना पड़ेगा. n इक्वल टू 1 2 3 पुट करके z माइनस z नॉट रेज टू n f ऑफ z. If this limit exists, then what? If this limit exists, then I can say z equal to z naught is pool of order n. Do you see? Do you observe this thing? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? Because if I am having a pool of order n, मतलब मेरा फंक्शन कैसा दिखेगा? If I am having a pool of, say z equal to z naught is pool of order n, that means what? I can write my function as summation, I don't care about this part, a n z raised to n, that is n equal to 0 to infinity, but I know this part is going to be up to bn, that is b1 upon z plus b2 upon z square plus it will be just bn upon z raised to n. This is the definition of pole, correct? Yes, this is the definition of pole. What I am saying, if I multiply z raised to n f of z, actually z equal to z naught पे लिया था ना, तो सब में z naught आएगा, इधर भी z minus z naught. I hope you understand. I am just making it z equal to 0. So if I am multiplying z raised to n f of z, so what I will be having here, यहाँ पे z raised to 2n, I don't care again, यहाँ पे ऊपर ही आएगा 2n आ गया, छोड़ो इसको. And here what it will be, z raised to n minus 1 b1. अगेन डू यू सी, ये भी इसी के पार्ट में आ रहा है,
देयर एक्चुअली नो टर्म्स ऑफ 1/z. सो मतलब लिमिट z टेंडिंग टू 0 z रेज टू n f ऑफ z एक्चुअली 0 होता है या एग्जिस्ट होता है, यू कैन से. सो इफ दिस एग्जिस्ट व्हाट कैन आई से देन? z equal to 0 is a pole of order n. Do you see मतलब लिमिट से हाउ एम आई रिलेटिंग टू द फंक्शन? अगर मुझे चेक करना है तो आई एम एबल टू डू. इफ आई कैन नॉट फाइंड एनी z रेज टू n then I can see it is essential singularity. So you can say this is one more definition to check whether a function is having a pole of order that. So but इसमें क्या है, तुमको गेस करना पड़ेगा. पहले n इक्वल टू 1 पुट करो, z इंटू एफ ऑफ z चेक करो, z स्क्वायर इंटू एफ ऑफ z चेक करो, z क्यूब इंटू एफ ऑफ z, एंड इट इज़ ओके अगर ऑप्शन में 1 2 3 ही ऑप्शन हो तो 3 4 तक ऐसा, then you can do that. That is not a difficult task. I hope is it clear to you? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? I'm just trying to relate this thing. So in general अगर देखोगे तो z इक्वल टू 0 की जगह पे z इक्वल टू z टेंडिंग टू z नॉट आएगा. I think I have written already. Yeah. Limit z tending to z naught, z minus z naught raised to n f z. If it exists, then what can I say? Z equal to z naught is a pole of order n. और अगर सिर्फ लिमिट फंक्शन का एग्जिस्ट होता है then like in this case, do you see? I cannot find any z raised to n. n का कोई भी पावर लो, I cannot find any n such that z raised to n f of z exist. Is that clear to you? So I can say that if I cannot find, तो मतलब essential singularity ऐसा. अगर ये एग्जिस्ट होता, करेक्ट, तो मैं क्या बोलता, इट इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एन, बट आई एम नॉट हैविंग दैट. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. आई एम सॉरी अगर थोड़ा सा ये मतलब इट इज़ एक्चुअली एडवांस कैलकुलस, थोड़ा सा मतलब डिटेल में जाता है, बट इट इज़ ब्यूटिफुल इफ़ यू अंडरस्टैंड. ठीक है. हेलो. Hey, are you there? Oh, thank you. So what is the answer here? नाइनटीन का आंसर क्या है? लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है ना. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 3. 0 इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ एफ. करेक्ट. समझा ये कॉन्सेप्ट? समझा क्या रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या है, पोल क्या है, इसेंशियल सिंगुलैरिटी क्या है? इफ यू नो द डेफिनेशन देन यू कैन इजीली हैंडल देम. दे आर जस्ट नाम से बड़े हैं एंड दे आर इजी टू हैंडल, आई थिंक. ओके. Yeah, good. Now you may try. Now this is your thing to do this thing. Descriptive का क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो. या आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस थिंग. ये भी क्वेश्चन हम लोग ने किया है, तो आई गिव सम टाइम टू यू. थिंक अबाउट दिस एंड टेल मी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व कर पा रहे हो क्या? दैट इज इजी. आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास में. जैसे एक्स रेस टू 6 था, तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, एक्स क्यूब का स्क्वायर, एंड एक्स क्यूब को मैंने कुछ पुट किया था, देन डेरिवेटिव इज एक्स स्क्वायर, सो इट वाज हियर. आई थिंक π/6 आया था शायद इसका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. हाँ, ये देखो यहाँ पे बोला भी है यूजिंग मेथड ऑफ रेसिड्यू. सो मुझे क्या करना रहेगा, आई हैव टू टेक ऑल द रूट्स विच आर अबव रियल एक्सिस. करेक्ट. आई हैव टू गेट ऑल द रूट्स. सो ये केस में क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस 1 ना. सो देर आर 2 रूट्स, जेड इक्वल टू आई और जेड इक्वल टू -i. मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर वाला, नीचे वाला रूट नहीं लेना है. समझा क्या? डू यू रिमेंबर कि मैं सॉल्व करूँ इसको, एक क्वेश्चन को? एक्चुअली दोनों सेम ही है.
इफ़ यू मतलब अगर इसको सॉल्व कर लिया तो ये भी सॉल्व हो गया, मतलब इसको सॉल्व किया तो दैट इज़ यूज्ड हियर, दैट्स इट। और ये तो इफ़ यू सी प्रॉपर्ली ये तो tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो डेफिनेटली tan इनवर्स ऑफ 1 है तो पाई/4 आएगा ऐसा कुछ। एनीवे ये एक बार देख लेना तुम लोग, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या करते हैं हम लोग, यू विल गेट द, इसको पहले तो मे बी आई ट्राई टू डू इट हियर ओनली। लुक एट द फंक्शन, आई विल जस्ट रिलेट इट विद दैट, तो मैं इसको लिखूंगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड रेस टू, पहले तो थोड़ा सॉल्व कर लो क्या पुट करके, जेड रेस टू 6+1, सो दिस इज माई क्वेश्चन। क्या करूँ मैं, जेड क्यूब इक्वल टू से क्या पुट करूँ, टी पुट कर दो सपोज। एक काम करते हैं, पहले एक्स था ना ये, तो पहले एक्स स्क्वायर ही रहने देते, इसको जेड में लाते हैं। सो सपोज एक्स क्यूब इक्वल टू मैं जेड बोलता हूँ, ठीक है। सो 3x स्क्वायर विल बी व्हाट, डी जेड, 3x dx will be dz, so this will be 0 to infinity, again 0 to infinity ही रहेगा ये, 0 to infinity 3x स्क्वायर मतलब ये क्या आएगा 1/3 टाइम्स dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1, डू यू सी, अगर ये मिल गया तो ये तो इधर से मिल गया, देयर इज नथिंग, सो 1/3 को भूल जाओ, जेड स्क्वायर प्लस 1, व्हाट डू यू सी, तो सिंगुलरिटी क्या है इसमें, हियर इन दिस केस इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, हाँ z इक्वल टू आई एन माइनस आई, करेक्ट, z इक्वल टू प्लस माइनस आई, जेड स्क्वायर प्लस 1 था ये। सो इन दिस केस तुम्हें यू हैव टू कंसिडर द कंटूर इज सेमी सर्कल, मतलब ऐसा, एंड कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब ऊपर अपर हाफ में कोई भी पॉइंट है तो यू कैन से दैट इज इन माई कंटूर। सो z इक्वल टू आई इज माई इन माई कंटूर एंड z इक्वल टू माइनस इज नॉट इन माई कंटूर। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट रेसिड्यू एट z इक्वल टू आई निकालना पड़ेगा, रेसिड्यू एट z इक्वल टू आई ऑफ एफ ऑफ z, एंड दैट इज ईजी। क्या आएगा उसका आंसर बोलो, 1/z इक्वल टू z माइनस है तो इट विल बी 1/2i आएगा ना शायद, करेक्ट, am I करेक्ट, रेसिड्यू एट z इक्वल टू आई 1/2i आएगा क्या, देखो आई एम नॉट कंसिडरिंग 1/3, हाँ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पीपल, ठीक है। सो मतलब इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा, 2πi अपॉन 2i, सो 2i और 2i इट विल बी जस्ट पाई, एक्चुअली π/3, 1/3 बाहर है तो आंसर विल बी π/3, यस यस बोलो, क्या जीरो से स्टार्ट हो मतलब, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये 2 टाइम्स आएगा ना, यस एक्चुअली इवन फंक्शन है, डू यू सी, इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स आएगा ये, जस्ट 1 सेकेंड शो यू देयर, इसी में है वो, लास्ट टॉपिक ही किया था हम लोग ने। तो आई थिंक प्रैक्टिकल है क्या ये, seems to be practical number 5। या यस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है वो, बट हियर आई एम हैविंग ये इवन, देखो सेम क्वेश्चन मैंने बोला भी था। सो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का वैल्यू आ रहा है 1/2i, सो आई एम गेटिंग पाई, करेक्ट। तो अगर 0 टू इन्फिनिटी लिया तो दैट विल जस्ट गिव बी π/2 आएगा वो, समझा, सो दैट इज π/2,
बट 1/3 अगर मल्टीप्लाई किया तो दैट विल बी π/6. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि π/6 आएगा क्या शायद. सो π/6, यस यस यू आर करेक्ट. माइनस it is a even function, that's why. Same question actually. Ditto same. वही दोनों क्वेश्चन मेंशन्ड है, फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट एट्थ वन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटी. या सेम थिंग, मतलब इसमें करना क्या है तुमको, यू जस्ट हैव टू लुक एट द पावर सीरीज एक्सपांशन या लिमिट के बारे में देखो. सेम थिंग, हाँ, जैसे मैंने जस्ट बात किया अभी आपसे. लुक एट दिस वन, साइन 1/z. क्या बोलोगे इसका, क्या आएगा? z इक्वल टू 0 क्या रहेगा साइन 1/z के लिए? देयर विल बी इन्फिनिट टर्म्स ऑफ 1/z, करेक्ट. सो इसके लिए इसेंशियल सिंगुलैरिटी आएगा. डू यू अग्री? यस, परफेक्ट. व्हाट अबाउट दिस? लुक एट द फंक्शन. क्या है फंक्शन? इज साइन स्क्वायर z अपॉन z⁻3. ऐसा ये है ना, ठीक है. सो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई किया तो मुझे नहीं मिलेगा. डू यू अग्री? अगर डायरेक्ट मैंने लिमिट अप्लाई किया तो मतलब रिमूवेबल तो नहीं है ये. इतना समझ रहे हो तुम लोग को, रिमूवेबल नहीं है. क्यों रिमूवेबल? मतलब क्या, मुझे जस्ट डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है. लिमिट z टेंडिंग टू 0, इट विल बी साइन स्क्वायर z. आई थिंक शायद आ सकता है, क्या चेक करते देखो. तो इट इज़ 0/0 फॉर्म, तो आई कैन अप्लाई लापितल रूल. तो डेरिवेटिव लिया तो ऊपर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 sin z cos z, दैट इज साइन 2z, एंड इन द डिनोमिनेटर इट विल बी 3z स्क्वायर. करेक्ट. समझा क्या तुम लोग को क्या कर रहा हूँ मैं? हेलो, आई एम यूजिंग लापितल रूल. मैं डायरेक्ट लिमिट अगर चेक कर रहा हूँ, अगर डायरेक्ट लिमिट एग्जिस्ट हुआ तो आई कैन सिंपली से कि हाँ ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, दैट्स इट. अभी अगेन इट इज 0/0 फॉर्म, सो अगेन कैन आई डिफरेंशिएट? Yeah, so I'll definitely find it here, I think. हाँ, क्या हुआ? अगेन इट इज लापितल रूल. सो साइन 2z का डेरिवेटिव क्या होएगा? इट इज cos 2z इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6z. डू यू सी, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होएगा. cos 0 is 1, बट यहाँ पे हियर आई एम हैविंग z, सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट. तो मतलब अगर डू यू सी, मतलब एक z की कमी आ रही है तुमको, सो इट इज़ बेटर टू मल्टीप्लाई z हियर. If I multiply z here, then can I do that? हेलो, डू यू सी, मतलब अगर मैंने फंक्शन में z से मल्टीप्लाई किया होता, से मल्टीप्लाई बाय लिमिट z, उसको साइड में ही रखा है अभी तक मैंने. मल्टीप्लाई बाय लिमिट z, मल्टीप्लाई बाय लिमिट, अभी लिमिट को मैं साथ में ले लिया तो माई z विल गेट कैंसल एंड आई विल गेट दिस एग्जिस्ट. डू यू सी, मतलब एग्जिस्ट क्या हो रहा है, z इंटू एफ ऑफ z. दिस लिमिट इज एग्जिस्ट. सो व्हाट कैन यू सी? This is a simple pole. Very nice. This is simple pole, मतलब pole of order 1. Is that clear to you? समझा? अभी मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग. सी, पहले मतलब मैंने z को साइड में ही रखा है. अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुमको u इंटू वी अप्लाई करना पड़ेगा इधर. समझ रहे? तो मैं मतलब जस्ट लापितल रूल इस पे यूज़ किया, इस पे यूज़ किया. माई लिमिट z एट साइड में, आई डोंट केयर, मतलब उसको मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूँगा. और अगर u इंटू वी से भी किया तभी भी आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. साथ में लिया तभी भी आएगा. सो अभी z कैंसिल होएगा और आई बी गेटिंग दिस विल बी अ सिंपल पोल. मीन्स मतलब क्वेश्चन देख के लगता नहीं है ये सिंपल पोल होएगा. अगर मतलब डायरेक्ट देखा तो इट सीम्स टू बी z³ है यहाँ पे, एंड तो इट विल बी हैविंग अ पोल ऑफ ऑर्डर 3, बट इट इज़ नॉट, बिकॉज 0 इसमें भी आता है ना साइंस स्क्वायर में. व्हाट अबाउट थर्ड वन? लुक एट थर्ड वन एंड टेल मी कैसे करोगे. cos z minus 1 upon z square, that is quite easy. Yes, do you know cos 2 theta का फॉर्मूला?
1 minus 2 sine square theta, correct? So what is the value of cos 2 theta minus 1? What is value of cos 2 theta minus 1? It is minus 2 sine square theta. Can you see the numerator and here? So can I write my function cos z minus 1 upon z square in this form? That is minus 2. Can I write it sine z by 2 upon z the whole square? I don't care about whole square. Can I do that? Yes? इतना समझा क्या? What else I should do now? Minus 2 बाहर, 1 upon z square भी बाहर. This is 1 upon z square भी बाहर. Do I know sin z by 2 का expansion? Yes, odd multiple, that is odd power. So that is z by 2 minus z square by 2 factorial, or z cube, na? Z cube by 3 factorial plus z raised to 5 by 5 factorial, and so on, and the power will be 2. Is that okay? z by 2 cube आएगा यहाँ पे, हाँ 2 cube आता रहेगा ये. So what can you say here? By looking at this, what can you say? क्या आएगा ये? ये पूरे टर्म का स्क्वायर है, एंड here I am having 1 upon z square. What can you see? अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट लिमिट भी अप्लाई कर सकते थे, वो भी ठीक था. इवन दैट वुड बी बेटर वन. यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म में ही आ रहा था ना, तो डायरेक्ट लिमिट भी अप्लाई करते तभी भी चलता है, या इधर से भी दिख रहा है तभी भी तुमको समझना चाहिए. यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज़ पावर टू, दिस इज़ पावर टू. अगर यहाँ से नहीं क्लियर है तुमको तो यू जस्ट ट्राई टू सी डायरेक्ट लिमिट टेंडिंग टू 0 cos z minus 1 upon z square. व्हाट डू यू थिंक? डेरिवेटिव लिया, इसका क्या आएगा? cos z का डेरिवेटिव माइनस साइन z, करेक्ट, एंड अपॉन 2z. अगेन 0/0 फॉर्म में है ना. कैन आई डिफ्रेंशिएट अगेन? साइन z का डेरिवेटिव cos z, so it will be minus cos z upon 2. What is the answer? That was a easy problem. Answer is minus 1/2, मतलब exist होता है. So what is your conclusion? If it exists, then what? Removable singularity. Very nice. खत्म. Means it is a removable singularity. Limit was easy. उधर से भी वही मैं बोल रहा था, टू ऑब्जर्व द लिमिट. एक्चुअली जो बड़ा वाला ब्रैकेट था ना वो स्क्वायर था, और बाहर भी स्क्वायर था, तो स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल होएगा, एंड अदर टर्म्स आर मोर डिग्री 2 का आएगा. डिग्री 2 से 1 से बड़ा ही रहेगा डेफिनेटली, एंड दैट विल बी एनालिटिक पार्ट आएगा. दैट मीन्स देयर विल बी नो पार्ट, नो प्रिंसिपल पार्ट. सो द आंसर विल बी, इट विल बी अ रिमूवेबल सिंगुलर. उधर से भी यही दिखता, बट ये लिमिट वाला ज़्यादा इजी. ठीक है. एंड बाकी सब में तो रेसिड्यू ही निकालना है. आई डोंट थिंक सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर यू. ठीक है, कैन यू डू दैट? सब में रेसिड्यू ही निकालना है, दिख रहा है. जस्ट कंटूर देखना है कौन प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए, एंड देन सो ऑन. ओके.